Ladies and gentlemen, I would like to introduce the our today's trainer. It's my honor to introduce our esteemed trainer for today's session, Dr. Sajid Ali Yousafzai, who has conducted several trainings in Pakistan and US universities in research designs, instrument development, testing, monitoring and evaluation, validation process, data analysis in SPSS and SAS, journal publications, open journal systems, journal publishing, and similar trainings. He has won several research-related research fundings and grants from USAID, HEC, US Embassy, and US States Department. Dr. Sajid is the founding member of TED Excellence, that is a training and research consultancy organization which aims to equip faculty and scholars with latest trends and methods related to research. Trade Excellence is also engaged in various international research projects. Dr. Sajid Ali Yousafzai is also a trainer of HEC for the NAHI training program, and now he is also conducting several trainings on publishing ethics. And our today's session is on smart publishing in academia, how to avoid predatory journals. Over to you, sir. Please, you can start the session. Okay, thank you so much. So first of all, good afternoon everyone, and thank you for taking the time for attending this session. ربي شرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. The purpose of this session is actually equip and give awareness about fake and clone journals, and to make authors and academia aware about quality publications and how to detect and dodge fake journals. So these are actually main objectives of the session, to make you aware about the academic publication and how to choose the right journals and how to identify the fake or predatory journal, and how you can explore reputable and trustworthy journals, and how to ensure the quality and credibility of journals. So in this 1 hour session, I will hopefully explain all this process, and I also do some activities so that you get some idea by yourself as well. First of all, my first question is ice breaking, that what is your biggest motivation for article publication? For this purpose, I make this one link. So all right, I think that is enough. I just want to get a basic idea that what are your preference about article publications. अभी अगर 27 या 30 पार्टिसिपेंट्स की जो एंट्रीज हैं उसके मुताबिक मेनली their motivation is a research impact or knowledge creation, academic recognition, और fifth पे personal satisfaction, और fourth पे jobs promotion and job security. अब अजीब सी बात ये है कि जो मैं देखता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो फोर्थ पे पार्टिसिपेंट ने जिसको फोर्थ रैंक दिया है, वो बेसिकली फर्स्ट हमारी प्रेफरेंस होती है. तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी जनरली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन, दे वांट टू पब्लिश पेपर जस्ट टू गेट प्रमोशन और फॉर देयर जॉब सिक्योरिटी. देन द सेकेंडरी होता है अक्सर लोगों का रिसर्च इम्पैक्ट, नॉलेज क्रिएशन. अब अगर आपने ऑनेस्टली ओपिनियन दिया है, विच आई बिलीव आपने ऑनेस्टली ओपिनियन दिया है, सो दैट इज़ वेरी गुड साइन दैट योर प्रेफरेंस ऑफ आर्टिकल पब्लिकेशन इज रिसर्च इम्पैक्ट, नॉलेज क्रिएशन, एकेडमिक रिकग्निशन. So in this session again, I will focus on how you can make those impact, how you can create knowledge, and how you can make academic recognition. क्योंकि अगर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छा पेपर है, और किसी फेक जर्नल में या किसी अलग से क्लोन जर्नल में पब्लिश हो गया, तो आपकी नॉलेज अगेन ज़ीरो हो गई, रिसर्च इम्पैक्ट ज़ीरो हो गया. सो दैट इज़ जो काम आप करते हैं, जो नॉलेज आप क्रिएट करते हैं, जो रिसर्च आप करते हैं, उसकी पब्लिकेशन को सही जगह पे डिसिमिनेट करना, वो भी इतना इम्पॉर्टेंट है जितना रिसर्च खुद करना है. So thank you so much. Is responses ka, and now I will go again. And so the key point that always do research on journal before publishing your research in the journal.
सो अगेन, अगर आप कोई भी रिसर्च करते हैं और जितना टाइम आप रिसर्च करने पे करते हैं, एटलीस्ट उसका 10% जर्नल की सिलेक्शन पे भी करें, तो आपका वो जो, क्योंकि रिसर्च करना एक सेगमेंट है और उसको पब्लिश करना और रिपोर्टेड जर्नल में पब्लिश करना एक दूसरा बड़ा सेगमेंट है। सो यूजुअली हम आथर जो हैं वो दूसरे बड़े सेगमेंट जिसमें जर्नल की सिलेक्शन है, जर्नल को ढूंढना है, उसमें हम गफलत बरतते हैं या उसमें हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि वो मेन कार्क्स है। तो अगेन मैंने आपको पहले बताया कि रिसर्च बहुत अच्छी है, पर्पस आपका इम्पैक्ट लाना है, लेकिन अगर जिस जर्नल में हुआ है वो जर्नल ही फेक जर्नल है या वो जर्नल ही किसी डुबियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो नो वन वुड रीड इट योर पेपर, नो वन कंसीडर योर नॉलेज एज अ नॉलेज क्रिएशन. So it is important to do some research on journal before sending your research on the journal. Again, another question I would like to ask: what is your biggest challenge in the publication process? Finding exact journal, research journal, blacklisted journal, authentic journal, application processing fees, delay in publication, article processing fees, indexing, funding, fee of journal, HSC recognized journal, journal search, research journal, study scope, prolonged time, quality of work, don't know fully, review process, fees of journal. So mostly जो participants हैं उनका जो biggest challenge है वो fees है. अगेन वो फीस भी इसलिए है आप लोगों का क्योंकि आपका जो टारगेट है, फोकस है, वो ज्यादातर है ही उन पेड जर्नल पे जो कि फीस लेके पब्लिश कर देते हैं. आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि AGRS में ऑलमोस्ट 30,000 जर्नल्स हैं. उस 30,000 में 20,000 जर्नल, 22,000 जर्नल बल्कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसमें कोई पब्लिकेशन फीस नहीं है. सो सिर्फ 10,000 जर्नल या वो जिस 22% जर्नल ऐसे हैं जो कि जिसकी पब्लिकेशन फीस है, अदरवाइज 75% जर्नल फ्री ऑफ कॉस्ट है. अगेन, चूंकि हमारा फोकस ज़्यादातर क्विक पब्लिकेशन पे है, तो हम फेक जर्नल, प्रीडेटरी जर्नल पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज दे टेक मनी एंड दे पब्लिश एनीथिंग. सो अगेन, जो आपका बिगेस्ट चैलेंज फीस है वो इसलिए है क्योंकि आपने फोकस ही सिर्फ उन जर्नल पे, आपका जो मतलब आप गए उसी जगह पर हैं, उस शहर में गए जहाँ का लोग ही फेक जर्नल पे थे. आप अगर ऐसे काफ़ी सारे जर्नल्स हैं, आई जस्ट टोल्ड यू 70% जर्नल्स हैं, अच्छे जर्नल्स हैं, ओरिजिनल जर्नल्स हैं AGRS में, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. बट इट टेक्स टाइम, विच मीन्स 2 month 1 month प्रोसेसिंग टाइम लगते हैं, बट दोज आर legitimate time. Anyway, in this session I'll cover up those things as well. So I just got your response that biggest challenge is a fees भी है और dubious journal, clone journal, fake journal, इसके बारे में चीज़ों का वो भी है. So yes. So I will share the screen. So now I'll go that what is exactly mean by the fake journal, predatory journal, and I just want to make you clear about these terminologies. Basically, fake journals, predatory journals जो हैं, predatory journals कौन से होते हैं? Predatory journals are stand-alone journals. Yes. Fake journal, predatory journal, stand-alone journal. I'll explain one by one. प्रीडेटरी जर्नल वो होते हैं जिसका कोई अपना कोई वो नहीं होता, अपना कोई रिव्यू प्रोसेस नहीं होता, अपने कोई बस एक ऑफिस बनाया हुआ है और उसके अंदर एक ही बंदा आथर है, एक ही बंदा रिव्यूअर भी है, वही एडिटर है, वही हैंडलिंग कर रहा है, वही आपको ईमेलिंग कर रहा है, वही सारे कुछ आपसे राब्ते कर रहा है. एंड देन डी लिस्टेड जर्नल कौन से होते हैं? जो रिमूव्ड होते हैं फ्रॉम रेपुटेड डेटाबेस जर्नल से. वेट अ मिनट. Just go live.
will close this. ओके, स्टैंड अलोन जर्नल वो जो एक ही बंदा एडिटर है, एक ही बंदा रिव्यूअर है और वही आपसे ईमेलिंग कर रहा है, सारे आपसे करेस्पॉन्डिंग वही स्टैंड अलोन जर्नल कहलाते हैं। क्लोन जर्नल जो कि बहुत कॉमन है आईटी की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से, क्लोन जर्नल वो जर्नल कहलाते हैं। एक जर्नल है जो एचईआरएस में है, अच्छा जर्नल है, और किसी ने उसका डुप्लीकेट बना दिया सेम नेम से, सेम आईएसएन नंबर से, सेम स्टाइल से, दैट इज कॉल्ड क्लोन जर्नल। जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट्स देखी होंगी, जैसे कपड़ों में रेप्लिका होता है, बाकी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, शूज़ होते हैं जो ब्रांडेड होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी 2 नंबर बनाते हैं, दैट्स अ क्लोन जर्नल्स। और डी लिस्टेड जर्नल्स कौन से होते हैं? डी लिस्टेड जर्नल्स वो जर्नल्स होते हैं जो कि इंडेक्सिंग सर्विस एजेंसी से या डेटाबेस से रिमूव हो चुके होते हैं ड्यू टू देयर फेक और ड्यूबियस एक्टिविटीज़। जो मेनली 2 डेटाबेसेस हैं, स्कूपस एंड वेब ऑफ साइंस, जो करंटली एचईसी जिनको अप्रूव करता है, उस जर्नल से जो डी लिस्टेड जर्नल्स होते हैं, आई मीन जो अगर जर्नल उन डेटाबेसेस से डी लिस्टेड हो गए, दोट्स कॉल्ड डी लिस्टेड जर्नल्स। और वो किस वजह से डी लिस्टेड होते हैं? ड्यू टू द लैक ऑफ क्वालिटी या ड्यूबियस एक्टिविटीज। Now I'll explain the key characteristics of fake or predatory journal. Key characteristics कौन सी है? अगर आपको किसी जर्नल का बड़ा फैंसी किस्म का नाम लगे ना, तो दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीडेटरी जर्नल। और फैंसी किस्म का नाम होता है यूजुअली इंटरनेशनल जर्नल ऑफ XYZ, इंटर या ग्लोबल जर्नल ऑफ दैट्स। तो जिस जर्नल के टाइटल में इंटरनेशनल हो या कोई इस तरह का मल्टीनेशनल हो, या तो वो क्या एक वो बेसिकली इंडिकेट करता है दैट कुड बी अ डूबियस जर्नल। लेकिन अगेन आई विल आल्सो एक्सप्लेन, डिस्क्लेमर दे दूं कि सारे इंटरनेशनल टाइटल वाले जर्नल फेक जर्नल ही है। दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन। इसी तरह सेकंड उसका कैरेक्टरिस्टिक है अट्रैक्टिव बट अनप्रोफेशनल वेबसाइट। ऐसी कोई जर्नल की वेबसाइट नजर आए जिसमें आपको कलरफुल नजर आए, टेक्स्ट घूमता हुआ नजर आए, या ब्लिंक कर रहा हो, या कॉल फॉर पेपर भी इम्पोज कर रहा हो, ऐसा एक अट्रैक्टिव किस्म की वेबसाइट बनी हुई हो ताकि जो यूजर्स है, ऑथर्स है, वो देख के इम्प्रेस हो जाए, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंडिकेशन कि ये जर्नल या वेबसाइट जो है ये फेक है या प्रीडेटरी है। एंड आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, आगे मैं आपको वो एग्जाम्पल्स दूंगा जिसमें अच्छी आपको अट्रैक्टिव वेबसाइट नजर आएगी, बट दोज आर फेक। थर्ड है वेग सबमिशन गाइडलाइन। अगर किसी जर्नल के अंदर सबमिशन गाइडलाइन प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है और सिंपली एक आए बस पेपर सबमिट करा दो विदाउट प्रोवाइडिंग ऑथर गाइडलाइन, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंडिकेशन कि ये फेक जर्नल है, प्रीडेटरी जर्नल है। जितने भी जर्नल्स हैं, जो अच्छे जर्नल्स हैं, जो क्वालिटी जर्नल्स हैं, जो इंडेक्स जर्नल्स हैं, वो हमेशा अपनी ऑथर गाइडलाइन देते हैं, क्योंकि ऑथर गाइडलाइन देना बेसिकली उस इंडेक्सिंग एजेंसी जिससे उन्होंने इंडेक्स किया है, जिससे क्रेडेंशियल दिए, उसकी भी रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे HSC की ऐसे जर्नल जो भी रिकॉग्नाइज होते हैं, HSC का भी क्राइटेरिया है कि वो जो भी जर्नल होगा ऑथर गाइडलाइन मेंशन करेगा। तो किसी भी जर्नल की वेबसाइट पे ऑथर गाइडलाइन ना हो, दैट आल्सो इंडिकेट कि इट मे बी अ डूबियस जर्नल। थर्ड, आस्किंग पेपर वाया ईमेल। फोर्थ, अगर कोई एडिटर खुद आपको ईमेल करके कहता है कि जी पेपर भेजो, पेपर पब्लिश हो जाएगा, दैट इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि ये स्कैम है या डूबियस या प्रीडेटरी जर्नल है। बिकॉज अगेन अब आपने खुद अभी बताया बिगेस्ट चैलेंज क्या है। बिगेस्ट चैलेंज ये है कि डिले होता है प्रोसेसिंग में, पब्लिकेशन फीस होती है। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि समवन इज आस्किंग यू टू सेंड अ पेपर, व्हिच मींस दे जस्ट वांट टू ट्रैप यू। तो अगर कोई भी पेपर आपसे ईमेल के जरिए मांगे या ईमेल के जरिए सबमिशन का कहे, दैट इज आल्सो प्रीडेटरी या फेक जर्नल, क्योंकि अब सारा ऑनलाइन सिस्टम है, अपने जर्नल सिस्टम मौजूद होते हैं, उसके अंदर ये सारे सबमिशन होती हैं। हाँ, अगर किसी वेबसाइट पे आप जाएं और जर्नल का बहुत ब्रॉड स्कोप हो, तो दैट इज आल्सो अ फेक और प्रीडेटरी जर्नल। मिसाल के तौर पे एक जर्नल इंटरनेशनल ऑफ सोशल साइंसेस, और सोशल साइंसिस में लॉ का भी पेपर है, एंथ्रोपोलॉजी का भी पेपर है, क्लाइमेट चेंज का भी पेपर है, एजुकेशन का भी पेपर है, तो यू शुड हैव अ रिंग अ बेल कि भाई ये कोई गड़बड़ है। इसी तरीके से एक जर्नल है
अगेन सोशल साइंसेस का, उसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग के भी पेपर हैं, बायोलॉजी साइंस के भी पेपर हैं, तो दैट इज आल्सो इंडिकेट कि ये फेक और प्रीडेटरी जर्नल। तो ब्रॉड स्कोप हो तो ये खुद एक इशारा है, क्योंकि आप खुद सोचें ब्रॉड स्कोप क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है ताकि जो जर्नल का मालिक है, एडिटर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस कर सके कि भाई आपका अगर बायोलॉजी से फील्ड है, आप पेपर भेज दो, मैं कर दूंगा, इसी एजुकेशन से पेपर भेज दो, मैं पब्लिश कर दूंगा। तो ब्रॉड स्कोप इसलिए रखते हैं ताकि कस्टमर ज़्यादा हैं, फीस ज़्यादा कलेक्ट हो और पब्लिकेशन होती रहे धड़ाधड़। सीवरल पेपर इन सिंगल इशू, ये सबसे बड़ी एक निशानी है, आपने देखनी है। किसी भी जर्नल के इशू में अगर 20-25 से ज़्यादा पेपर पब्लिश हो तो आप स्ट्रेट अवे उसको रिजेक्ट कर दें, बेशक वो HGRS में हो, स्कूपस में, वेब ऑफ साइंस में हो, कोई के गारंटी दे, आपने कहीं पब्लिश उसमें पब्लिश कभी भी नहीं कराना। जो जितने भी अच्छे जर्नल्स हैं उसके अंदर एक इशू में 10 से 12 या 15 आर्टिकल्स होते हैं। अगर एक इशू के अंदर 200 हैं, 15 या 150 आर्टिकल्स हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। मतलब अगर आप सिर्फ कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करें कि एक जर्नल है, एक महीने में इशू निकाला है, उस एक महीने के अंदर 500 आर्टिकल पब्लिश किए हैं, तो यकीन कर लेना उसने क्या क्या किया होगा। उसने धड़ाधड़ जो भी आया होगा सबमिट किया होगा, तो रिव्यू प्रोसेस उसने किया ही नहीं है। तो एक इशू के अंदर अगर 20-25 से ज़्यादा आर्टिकल आपको नजर आए तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट दैट जर्नल। अच्छा, फ्रीक्वेंट इश्यूज ऑफ पेपर, ऐसा अगर आप देखें कि एक जैसे कुछ अच्छे जर्नल्स होते हैं या जितने भी जर्नल्स हैं उसको बायएनुअल होते हैं या क्वार्टरली होते हैं या सेमी एनुअल भी होते हैं। बहुत कम ऐसे जर्नल हैं जो मंथली हैं, जो अच्छे जर्नल्स हैं। लेकिन एक डूबियस प्रीडेटरी जर्नल्स का एक सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि वो मंथली, क्वार्टरली, हर 15 दिन बाद इशू करेंगे। एक ये भी, और दूसरा उनको कोई टाइमलाइन नहीं होती। जब उनको कस्टमर मिल जाते हैं इशू रिलीज कर देते हैं। वो जनवरी में भी कर लेते हैं, मार्च में भी कर लेते हैं, फिर हो सकता है 4 महीने का गैप आ जाए, जून में भी कर देंगे, जुलाई में भी कर देंगे। तो एक क्लियर टाइमलाइन नहीं होती। दैट इज आल्सो इंडिकेशन कि ये फेक और प्रीडेटरी जर्नल है, क्योंकि इसकी अपनी कोई टाइमलाइन ही नहीं है फ्रीक्वेंसी के इश्यूज की। So these are the key characteristics of fake and predatory journal. Along with these 7 characteristics, I also highlighted some. Lack of transparency. Lack of transparency, which means they do not disclose information about their editorial process या review process. वो बस उनका मेन मकसद होता है सबमिट करा दो, हम आपको एक हफ्ते बाद बता देंगे, आप फीस जमा करा दो, पेपर ऑनलाइन हो जाएगा। दैट इज देयर ओन मेन गोल। तो लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है एडिटोरियल प्रोसेस में, रिव्यू प्रोसेस में। दिस इज आल्सो वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेक एंड प्रीडेटरी जर्नल। क्वेश्चनेबल पीयर रिव्यू, व्हिच मींस कोई रिव्यू प्रोसेस नहीं होता, बस पेपर सबमिट कराया, फीस कलेक्ट की, सबमिट कर, ऑनलाइन इशू हो गया। एंड देन मिसलीडिंग मैट्रिक्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसलीडिंग मैट्रिक्स क्या है? आपको वेबसाइट पे अगर कभी नजर आए ना इम्पैक्ट फैक्टर 4.5 या दूसरी चीजें नजर आए कि Q1 जर्नल है, Q2 जर्नल है या HGRS X कैटेगरी जर्नल है, ये सारे असल में मिसलीडिंग मैट्रिक्स होते हैं। ये आपको सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए, ऑथर को इम्प्रेस करने के लिए कि ये जर्नल इतना है, आपको हमेशा वेरीफाई करने की जरूरत है। जर्नली जो अच्छे जर्नल्स हैं वो कभी भी ये मैट्रिक्स, खास अगर इम्पैक्ट फैक्टर भी करते हैं तो इम्पैक्ट फैक्टर वही होता है जो थॉमसन राउटर वाला एक इंडिकेटर है। अदर देन दोज इम्पैक्ट फैक्टर आर जस्ट मिसलीडिंग मैट्रिसेस, एंड आई विल शो यू द एग्जांपल्स ऑफ मिसलीडिंग मैट्रिसेस इन लेटर ऑन द स्लाइड एज वेल। वेग और फास्ट इंडेक्सिंग क्लेम, यानी ऐसे जर्नल होंगे वो कहेंगे स्कूपस इंडेक्स्ड है, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स्ड है, और भी स्कूपस का लोगो भी लगा होगा या वेब ऑफ साइंस का लोगो लगा होगा। ये जस्ट धोखा देने के लिए या फॉल्स इंडेक्सिंग क्लेम होता है। दर हकीकत उनकी इंडेक्सिंग कहीं पर भी नहीं होती। ऐसे भी जर्नल हैं जिनकी इंडेक्सिंग मिसाल 2020 में हुई भी है, लेकिन उनकी गलत हरकतों या अनइथिकल प्रैक्टिस की वजह से उनको डीलिस्टेड कर दिया गया। वो स्टिल अपनी वेबसाइट में स्कूपस का लोगो लगाते हैं कि स्कूपस इंडेक्स जर्नल। अगेन दिस इज फॉल्स इंडेक्सिंग क्लेम, और इसको वेरीफाई करने का भी तरीका है। लेटर आई विल शो द स्लाइड्स। एंड पुअर वेबसाइट क्वालिटी, वेबसाइट कोई इतनी ज़्यादा वो मालूमात से भरपूर नहीं होगी, सिर्फ उसमें आथर की वो सिर्फ ज़्यादातर होगा कि पेपर सबमिशन और आर्काइव, बस यही होगा। और इसके अलावा एडिटोरियल प्रोसेस, पॉलिसीज,
पॉलिसीज कहीं पे भी आपको मिसिंग हो किसी भी जर्नल्स में, दैट इज आल्सो इंडिकेट इज अ फेक और प्रीडेटरी जर्नल। और अगर वेबसाइट में आपको बहुत कलरफुल नजर आए ना, ऑरेंज, रेड, येलो, गोलागंडा टाइप का बना हो, तो दैट इज आल्सो इंडिकेशन, क्योंकि या आपको कोई एनिमेशन नजर आए, कोई ब्लर नजर आए, या कोई चीज ब्लिंकिंग होती हुई नजर आए वेबसाइट पे, दैट आल्सो इंडिकेट कि ये जो वेबसाइट है बेसिकली ऑथर को अट्रैक्ट करने के लिए, सो दैट आप पेपर सबमिट करा दें। या अगर आपको वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन जो है स्पेलिंग मिस्टेक की नजर आए, या कोई कॉपी पेस्ट कंटेंट नजर आए, दैट इज आल्सो इंडिकेशन कि फेक और प्रीडेटरी जर्नल है। अच्छा, पब्लिकेशन फीस जो है, अब देखें पब्लिकेशन फीस तमाम जर्नल्स जो लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो फेक या प्रीडेटरी जर्नल्स भी हो। कुछ अच्छे जर्नल हैं वो भी पब्लिकेशन फीस लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फीस लेते हैं वो ज़्यादातर फेक या प्रीडेटरी जर्नल होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा ये फीस लेने वाला जर्नल फेक है या ओरिजिनल है? एक सबसे बड़ा उसका इंडिकेशन ये कि ट्रांसपेरेंट फीस कलेक्शन प्रोसेस नहीं होगा। अगर फीस है तो वेबसाइट में क्लियरली मेंशन होगा और तरीका कार भी लिखा होगा। अगर कोई जर्नल अपने नाम से फीस मांगता है, यानी उसका बैंक अकाउंट जो है पर्सनल नाम से है, तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दें। इवन ऐसे भी लोग घूमते हैं, आपको भी पता होगा, मार्केट में लोग घूमते हैं, वो कहते हैं जी $50,000 दे दो, $200 दे दो, मैं आपको पब्लिश करा दूंगा, आपने ये कभी भी नहीं करना। और ये क्यों नहीं करना ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वो इसलिए नहीं करना, ये इथिक्स वगैरह को तो चलो एक एस्पेक्ट है, लेकिन दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है कि कुछ अरसे बाद वो जो लिंक है, वो जर्नल है, वो डिसअपियर हो जाएगा। तो आपके नॉलेज, आपका आर्टिकल, आपकी एफर्ट, आपकी उम्मीदें और आपका पैसा, ये सब ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, लेक ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी ऐसा जर्नल जिसका कोई पता ही नहीं चला पब्लिशर कौन है, पब्लिशर की एसोसिएशन कहाँ से है, किधर से है, दैट इज आल्सो प्रीडेटरी जर्नल। असल में होता ही है, कुछ जर्नल जैसे तो बहुत अच्छे जर्नल है, तो एक बंदा बैठा होगा जिसको थोड़ी बहुत वेबसाइट बनानी होगी, वो वैसी वेबसाइट बना देगा, वैसी वेबसाइट बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। बेसिकली ही मेक्स अ क्लोन जर्नल। तो उसकी अपनी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन ही है, लेकिन उसने सारे फेक डेटा उठा के लोगों को ट्रैप कर रहा है कि दे शुड सबमिट पेपर ऑन दिस जर्नल। एंड डूबियस एडिटोरियल बोर्ड, कोई पता ही नहीं चला एडिटोरियल बोर्ड कौन है। उसका भी एक तरीका ये है कि अगर किसी जर्नल में जाके एडिटोरियल बोर्ड पे जाके जो नाम है ना, उस नाम को सिर्फ गूगल कर लें और गूगल पे देख लें वो नाम एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते, और फिर ये भी देख लें जो नाम मेंशन किया उस नाम की एरिया ऑफ स्पेशलिटी क्या है। क्योंकि जो ये 2 नंबर काम करता है, जो फेक वेबसाइट बनाता है, वो ये भी करता है कि कुछ यूनिवर्सिटी से जाकर नाम उठाकर अपने एडिटोरियल बोर्ड में मेंशन कर देता है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं और करना चाहिए कि एडिटोरियल बोर्ड डूबियस तो नहीं है। हाई एक्सेप्टेंस रेट, हाई एक्सेप्टेंस इज यानी बस जो भी है भेजो, आप एक्सेप्ट हो जाएगा, दैट क्लियरली फेक और प्रीडेटरी जर्नल है। आप असाइनमेंट भेज दें, टास्क भेज, और यूजुअली होता यह है कि आपको लगता है कि मैंने काम पेपर बनाया है, ये बड़ी मेहनत वाला पेपर है, इसमें बड़ी मेहनत की है, लेकिन दर हकीकत जब इसको आप एक जेन्युइन रिव्यूअर के पास भेजें तो आपको बताएगा इसमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो लेकिन आप किसी फेक जर्नल में प्रीडेटरी में भेजेंगे, वो आपको कहेंगे ठीक है जी एक्सेप्ट हो गया, बगैर प्रूफ रीडिंग के, बगैर करेक्शन के, बगैर रिव्यू प्रोसेस के। तो उनका मेन फोकस ये होता है पैसे कलेक्ट करना। इनडिक्यूट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, अगेन अगर कोई ऐसे जर्नल की वेबसाइट है जिसमें इंफॉर्मेशन ही क्लियर नहीं हो, यानी एडिटर की इंफॉर्मेशन नहीं हो, या कांटेक्ट करने वाली जिस बंदे की इंफॉर्मेशन हो, कोई प्रॉपर ईमेल एड्रेस ना दिया हो, फोन नंबर नहीं दिया हो, या इवन एड्रेस ना हो, तो दैट इज आल्सो फेक और प्रीडेटरी जर्नल। मैंने आपको बताया ना कि जर्नल्स कुछ ऐसे हैं जो अच्छे जर्नल है, यूएसए में ऑपरेट होते हैं, उसी जर्नल के सेम नाम की, सेम स्टाइल की वेबसाइट यहाँ पे पाकिस्तान में किसी ने मंडी बहाउद्दीन में बनाई होगी या शेखुपुरा में बनाई होगी। अब वो बंदा जो है एक इंटर पास या ग्रेजुएट, उसने वही वेबसाइट बनाकर अपने 2-4 बंदे छोड़ दिए कि जी पेपर लो और उसका पेपर हम इस जर्नल में पब्लिश करेंगे। फिर वो आपको दिखाएगा दे HRS एक्स कैटेगरी में, W कैटेगरी में आपको मैं एक्सेप्टेंस भी दे दूंगा और आपका ऑनलाइन इशू भी कर दूंगा, पेमेंट बेशक बाद में कर देना, लेकिन उसमें कोई कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह नहीं होती, सारा फेक हो रहा होता है।
एंड डायरेक्ट सोलिसिटेशंस वाया ईमेल, व्हिच मींस आपको ईमेल आप देखते होंगे, आप स्पैम फोल्डर में पेपर की ईमेल आती होगी कि जी कॉल फॉर पेपर, या जी आप पेपर भेजें और $200 है, एक्स कैटेगरी है, आप भेजें, आप पब्लिश कर देंगे, और प्रोसेसिंग टाइम 1 हफ्ता या 5 दिन है. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेक और प्रीडेटरी जर्नल. बेसिकली ये जो प्रीडेटरी पब्लिशर है ना, ये आपसे पैसा लेते हैं, मेन फोकस इसका इनका जो है मनी, और वो ट्रैप करते हैं यूजिंग डिफरेंट इंडेक्सिंग एजेंसीज, डिफरेंट HEC कैटेगराइजेशन, कि जी हम एक्स कैटेगरी में है, W कैटेगरी में है, या तो दे जस्ट वांट टू मेक यू फूल एंड दे जस्ट वांट टू शो यू कि वी आर लेजिटिमेट, बट दर हकीकत दोज आर फेक. और उनको इससे कोई गर्ज नहीं होता कि आथर रीडर कौन है, ऑडियंस कौन होगी, उन्हें मेन कंसर्न ये आथर से पैसा पकड़ना है बस. तो अगेन ये जो मैंने लोगो शो के दिखाए ना, ये मास्टर कार्ड, वीज़ा, इस तरह की भी आपको किसी वेबसाइट पे लोगो मिले ना, तो स्टे अवे फ्रॉम दोस वेबसाइट एज वेल. ये दीज आर द इमरजेंस ऑफ बोगस मैट्रिसेस. ये अगेन किसी भी वेबसाइट पे आपको इस तरह के लोगो मिले, इंटरनेशनल साइंटिफिक इंडेक्सिंग, यूनिवर्सल इम्पैक्ट फैक्टर, एडवांस साइंटिफिक इम्पैक्ट फैक्टर, एक होता है ISI इम्पैक्ट फैक्टर, ये सब क्या होते हैं, ये डूबियस किस्म के इम्पैक्ट फैक्टर हैं जस्ट टू मिसलीड द ऑडियंस. इम्पैक्ट फैक्टर एक ही होता है थॉमसन राउटर का, जो वेब ऑफ साइंस से कैलकुलेट होता है. अब कुछ लोग क्या होते हैं, वो लोगों दूसरे ऑथर्स को गुमराह करने के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक इंडेक्सिंग ISI का इम्पैक्ट फैक्टर मेंशन करते हैं 4.5, 4.6. लोग इंप्रेस हो जाते हैं, जी मेरा जर्नल जो है, मेरा पेपर 4.5 इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश हुआ है, लेकिन वो 4.5 बेसिकली फेक है, वो मिसलीडिंग नंबर है. असल जो है वो थॉमसन राउटर का इम्पैक्ट फैक्टर है, जो वेब ऑफ साइंस की जर्नल से कैलकुलेट होता है. बाकी सारे जो हैं ये फेक है, जस्ट impress authors and just to mislead the audience. अच्छा जी, meanwhile कोई क्वेश्चन है तो पूछें, then I'll tell you that how do I choose the right journal. You should ask yourself, I should ask myself कि मैंने अब मुझे अगर पता चल जाए कि ये होता है प्रैक्टिसेस, ये चीज़ें होती है फेक जर्नल्स की, प्रीडेटरी जर्नल्स की. Now I should ask how do I choose the right journal. Again, how do I write journal, उसका एक तरीका तो यही है. एक तरीका तो ये, बल्कि ये जो मैंने आपको 5-6 कैरेक्टरिस्टिक हैं, अपने आप से पूछें क्या उसका फैंसी नेम, अनप्रोफेशनल वेबसाइट तो नहीं है, वेब सबमिशन तो नहीं है. इनमें से कुछ भी इंडिकेटर आपको मिले तो दैट शुड गिव यू अ रिंग अ बेल कि भाई अब एहतियात करनी है कि ये इसके अंदर. तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप आइडेंटिफाई कर ले जर्नल्स में, दैट आल्सो इंडिकेट कि दिस अ फेक और प्रीडेटरी जर्नल. और इसके अलावा अगर और भी मजीद आपने क्वालिटी की तरफ जाना है तो दैट आई आल्सो गिव यू सम सजेशन कि हाउ डू आई चूज अ राइट जर्नल. Meanwhile, let me see, authentication of journal UI issues and fake journal. It means free of cost journal are more authentic than paid journal. What about monthly issues journal? Okay, ये 3 क्वेश्चंस हैं. पहली तो ये कि ज़रूरी नहीं है कि फ्री जर्नल इज़ मोर ऑथेंटिक देन पेड जर्नल, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है. असल में ये है, ये कंफर्म है, ये तो मैं बता दूं कि फ्री जर्नल होगा ना, एटलीस्ट यानी फ्री जर्नल को एटलीस्ट ये उस पर श्योरिटी हो सकती है कि वो फेक नहीं होगा. क्योंकि जो लोग फेक करते हैं, क्लोन करते हैं, जो इतनी सारी एफर्ट करते हैं, ईमेल कर रहे हैं, आपका पेपर आ रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो वो किसी एफर्ट के लिए कर रहे हैं ना. वो एफर्ट क्या होती है, पैसा कमाना. तो अगर कोई पैसा कमाने के लिए कर रहा है तो यानी वो फीस ले रहा है, तो ये तो श्योरिटी है कि वो फेक जर्नल है. लेकिन अगर वो पैसा भी नहीं ले रहा और जर्नल में पब्लिश कर रहा है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि शायद वो लीजिटिमेट जर्नल हो, क्योंकि मेन पर्पस अगर वो फ्री में कर रहा है पब्लिश, दैट मीन्स उसका मकसद होगा जर्नल की वैल्यू बढ़ाना या नॉलेज क्रिएशन. ऐसा भी मुमकिन है, एक जर्नल है, मिसाल मेरा एक जर्नल है, नए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने अभी चूंकि HEC अप्रूव नहीं है या मेरा भी इंडेक्सिंग एजेंसी में नहीं है, तो मैंने फ्री में लोगों को कहा कि आप भेज दो. तो अब ये जो फ्री में है, अगेन ये फेक जर्नल नहीं है, प्रीडेटरी जर्नल नहीं है, लेकिन इसमें जो मैं पेपर पब्लिश ले रहा हूँ, लोगों को कर रहा हूँ, उसका मेन मकसद है कि अपनी जर्नल की रेपुटेशन को बढ़ाना, कि आहिस्ता आहिस्ता जर्नल डेवलप हो. लेकिन एक जर्नल जो है वो 2 साल से 4 साल से चल रहा है, फ्री में पब्लिश कर रहा है, तो यू शुड गो फॉर दैट विदाउट एनी डाउट.
दूसरा आपने एक क्वेश्चन पूछा कि मंथली इशू के बारे में क्या ख्याल है। अगेन मंथली इशू के भी कुछ जर्नल है जो अच्छे जर्नल है, लेकिन मंथली इशू में आप देखें हर इशू में पेपर कितने पब्लिश हो रहा है। अगर हर इशू में 15 से 20 से ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं ना, तो इग्नोर दैट जर्नल। क्योंकि जो एक रिव्यू प्रोसेस होता है, पूरा पेपर आता है जाता है, रिव्यू के पास जाता है, कमेंट्स आते हैं, फिर दोबारा उसके पास जाता है, तो ये सारे प्रोसेस में भी टाइम लगता है। तो हार्डली एक एडिटर उसकी पूरी टीम भी हो ना, तो एक इशू जो है निकालते 2 से 3 महीने लग जाते हैं, जिसमें हम 10 से 12 आर्टिकल हो। तो अगर एक इशू में 25-30 आर्टिकल हो और वो इशू हर महीने निकल रहा है, तो ये फेक जर्नल है। एक इशू के अंदर 5 से 7 आर्टिकल हैं, 8 आर्टिकल हैं और हर महीने निकल रहा है, तो दैट मे इंडिकेट इट्स अ लीजिटिमेट जर्नल और क्वालिटी जर्नल है। If we done clone website is the same the original, then how to identify the fake? Yes, जबरदस्त क्वेश्चन है, I will discuss later on. Next, how do I choose the right journals? How do I choose the right journal? So again, जो मैंने characteristics बताई है, that is also important. दूसरा, इन्वेस्टिगेट योर जर्नल शॉर्टलिस्ट करना है उसके एम एंड स्कोप पे। स्कोप आपके जर्नल की, आपके जो आर्टिकल है उसकी फील्ड से रिलेटेड है या नहीं है। ऐसा तो नहीं उस स्कोप में उसने बायोलॉजी भी लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स साइंस भी लिखा है, केमिकल इंजीनियरिंग भी लिखा है, सोशल साइंस भी लिखा है, एजुकेशन भी लिखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। पहले तो आप ये कॉमन एक स्टैंडर्ड रूल याद रखिए सब, कि अगर ऐसा जर्नल जिसका स्कोप बहुत वाइड हो ना, कभी भी उस जर्नल में पेपर ना पब्लिश करें। उसकी ना कोई क्रेडिबिलिटी होती है, ना कोई वैल्यू होती है, ना कहीं वो इंडेक्सिंग में जाता है। पेपर वही पब्लिश कराए जो जितना स्पेसिफिक हो, क्योंकि उसकी ऑडियंस उतनी ज़्यादा होती है। लेट्स से मेरा अगर एजुकेशन मेरी फील्ड है, तो मेरी कोशिश, हालांकि एजुकेशन सोशल साइंसेज में आता है, तो मैं कभी भी अपना पेपर, मैं ज़ाती तौर पे अपना पेपर सोशल साइंसेज की जर्नल में पब्लिश नहीं कराता, मैं एजुकेशन में। और अगर पेपर मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है तो कोशिश करूँगा उस एजुकेशन, अगर मेरा पेपर असिस्मेंट का है या क्लासरूम मैनेजमेंट का है, तो कोशिश करूँगा उस जर्नल में पब्लिश कराऊँ जिसका स्कोप सिर्फ क्लासरूम मैनेजमेंट हो या असिस्मेंट हो। इससे एक आपकी साइटेशन भी बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स कंसीडर, ये देख ले कि रीडरशिप कितनी है उसकी, उसको कोई पढ़ता भी है नहीं पढ़ता ज़रा, और स्पीड ऑफ पब्लिकेशन कितनी है, 10 से 15 दिन में पब्लिश कर रहा है, स्टे अवे फ्रॉम दोस जर्नल्स। पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या है, सिंगल है, ब्लाइंड है, ओपन है, और बिब्लोमेट्रिक उसके रेफरेंसेस वगैरह का स्टाइल क्या है, कंटेंट इनोवेशन है या नहीं है। तो कोई भी जर्नल आप जस्ट ओपन करें, उसके 1-2 आर्टिकल्स को देखें, उसका लुक देखें, पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप जब 1-2 आर्टिकल को सरसरी देख लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आर्टिकल्स जो हैं इस काबिल थे कि इनको पब्लिश किया जाए या ना किया जाए, और फिर भी पब्लिश हो गए, व्हिच मींस वो पैसे लेके पब्लिश हुए। एवुलेट जर्नल ऑन 6 मेन डायमेंशंस। एक तो ये देखें इसकी ऑडियंस कौन है, अगर ब्रॉड ऑडियंस है, कि ब्रॉड डोमेन है, स्टे अवे, क्योंकि व्हिच मीन इसकी समझो कि कोई ऑडियंस ही नहीं है, वो सिर्फ ऑथर पकड़ रहा है, उसको रीडरशिप से कोई गर्ज नहीं है। रिलेवेंस देख लें उस जर्नल के, आपकी आर्टिकल आपकी फील्ड से रिलेवेंस बनती है या नहीं बनती। क्वालिटी, अब क्वालिटी भी सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन अगर इवन आपने पीएचडी की है या कर रहे हैं या रिसर्च की है, तो आप किसी भी और जर्नल के आर्टिकल्स को आप देखें ना, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है, और लेक ऑफ क्वालिटी इंडिकेट कर देगा कि ये वी शुड नॉट सेंड फ्रॉम दिस जर्नल। एंड देन रिव्यू प्रोसेस एंड देन पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस वगैरह भी आप देख सकते हैं। Then I'll give you some examples of clone and predatory journals. Meanwhile, if you have any question, feel free to ask. ये हमारे पास है फ्रांस सेक्टर के पास में, ये उनकी कोई अजीज है, मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है। मोबाइल पे पहले 503 पे रखते कर रहे थे, इसको बंद कर दें। अच्छा, अब ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, कुछ मैंने एग्जाम्पल शॉर्टलिस्ट किए, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये जर्नल्स है, अब नाम भी पता नहीं क्या है इसका, अलकांतरा डब्ल्यू कैटेगरी में जर्नल्स हैं, और मैं आपको इसको मैं दिखाता हूँ, अलकांतरा ये, एंड देन यू जस्ट नोटिस कि उसमें
अच्छा, एक ये नजर आ रहा है आपको स्क्रीन? रुमेला, स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir, we can see your screen. ओके, नाउ सी, कभी भी किसी जस्ट हम ये देखें ना इस वेबसाइट, कभी भी आपको इस तरह की ये इस तरह के लोगो शोगो नजर आए ना, लाइक जर्नल साइटेशन, स्कूपस, अल्कॉन्ट्रा, ये खुद एक डूबियस है, क्योंकि जो स्कूपस इंडेक्स होते हैं दे डू नॉट नीड टू मेंशन ऑन स्कूपस इंडेक्स, बिकॉज स्कूपस खुद उनको मार्केटिंग से ही कर रहा होता है। दूसरा, ये देख लें ये किस कंट्री का जर्नल है, अगर कंट्री मेंशन नहीं है, पब्लिशर देख लें, पब्लिशर भी कहीं नजर नहीं आ रहा। जस्ट मैं आप ही की तरह मैं देखना चाह रहा हूं कि इसकी क्वालिटी को जांचने का पैमाना क्या है। दूसरा, आप सिंपली आथर देख लें। अभी अल्कॉन्ट्रा एटलीस्ट पाकिस्तान का तो जर्नल नहीं है। मैं इसको अबाउट पे जा लेता हूँ, कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ, जस्ट कॉन्टेक्ट में गया और कॉन्टेक्ट, और ये किसके, स्पेन का जर्नल है, ठीक है। अच्छा, स्पेन का जर्नल है। पहले तो एक इशारा ये है, देखिए फेक जर्नल का या वो, कि ईमेल प्रिंसिपल कांटेक्ट है, सपोर्टिंग स्टाफ है मिस्टर जॉन बला बला बला, ईमेल आईडी किसकी है, जीमेल की है। तो इतने बड़ा मिसाल अगर पब्लिशर है या इतना बड़ा जर्नल चला रहा है, वेबसाइट भी है, तो फिर इसका अपना डोमेन क्यों नहीं है, अपना उसका वो क्यों नहीं है। ये जीमेल की आईडी होना खुद एक इशारा है कि ये कुछ फेक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जीमेल की आईडी होना ही इंडिकेशन हो, लेकिन वन ऑफ द वे। सेकेंडली, अब ये स्पेन का जर्नल है, चलें ये तो पता चल गया स्पेन का जर्नल। अब मैं देख लेता हूँ ऑथर्स कितने हैं, ऑथर कौन है। ऑथर कौन है, तौसीफ आजम, आसिफ अहमद, मोइनुद्दीन, फौजिया तबस्सुम, बला, सबीर हुसैन, रुखसाना यास्मीन, अकरम, डॉक्टर मोहम्मद रियाज। अब ये सारे ऑथर्स जो हैं, ये पढ़कर ऐसा लगता है ये पाकिस्तान का जर्नल है, या पाकिस्तान ही ने बस सारे पब्लिश किए। जर्नल स्पेन का है, विच मीन स्पेन का कोई भी ऑथर इसमें शामिल नहीं है, यूरोप का कोई भी ऑथर शामिल नहीं है, सिर्फ ऑथर शामिल है तो सिर्फ पाकिस्तान की शामिल है। तो ये खुद एक बहुत बड़ा इशारा है कि ये जो वेबसाइट है, ये कोई, वही मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई मंडी बाउद्दीन में शेखुपुरा में चला रहा होगा, उसका ने नाम ये सारा कुछ इस तरह डिज़ाइन कर दिया, और जस्ट लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि देखो ये वेबसाइट है और W कैटेगरी जर्नल है वगैरह वगैरह। ये जो जर्नल है, ये जर्नल फेक नहीं है, जर्नल सही है, ओरिजिनल है, लेकिन ये जो लिंक है ये फेक है, ये क्लोन जर्नल है। क्लोन का मतलब ये है कि अल्कांट्रा ओरिजिनल वेबसाइट है, ओरिजिनल जर्नल है, HSC में अप्रूव्ड है, W कैटेगरी में, लेकिन किसी और ने इसके नाम का एक डुप्लीकेट वेबसाइट बना दी लोगों को गुमराह करने के लिए, पैसे लेके पब्लिश करने के लिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये फेक है या ओरिजिनल है, उसके मैंने आपको वैसे इशारे बता दिए। इशारे ये कि जर्नल स्पेन का है, ऑथर पाकिस्तानी है। अगर तो ये इतना लीजिमेट होता तो क्या स्पेन में कोई भी ऑथर नहीं था जिसने पेपर भेजा होता, या पाकिस्तानी सारे इतने डेस्परेट हैं पब्लिकेशन के लिए। और दूसरा, जब आपको इस तरह के लोगो नजर आए ना स्कूपस के, वेब ऑफ साइंस के, ये खुद एक इंडिकेशन है कि वो सिर्फ जस्ट आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। और ये चेक करने का भी एक तरीका, एक लिंक है जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं अल्कॉन्ट्रा स्कूपस इंडेक्स है या नहीं है, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स है या नहीं है। तो ये, अच्छा, ये जो थी ये फेक वेबसाइट है, और इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है ये है। मज़े की बात ये, इंटरेस्टिंग बात ये कि फेक वेबसाइट पाकिस्तान में खुलती, फेक वेबसाइट जो है PK बनी हुई है, ये फ्री में है, ये पाकिस्तान में खुल जाती है। और जो ओरिजिनल वेबसाइट है जो कि स्पेन का जर्नल है, वो पाकिस्तान में खुलता ही नहीं है। और ये स्पेन की लैंग्वेज में आ गया, वो इसलिए भी नहीं खुलता है क्योंकि पाकिस्तान शायद वो डोमेन पे वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये खुद एक इंडिकेशन है कि अगर आपको कोई रशिया का जर्नल और दूसरा कोई किसी और मुल्क के जर्नल पे कोई बंदा कहता है कि पेपर में पब्लिश कर दूंगा, तो पहले तो चेक करें वो जर्नल का लिंक यहाँ खुलता भी या नहीं खुलता, क्योंकि अगर यहाँ खुल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो फेक लिंक होगा, किसी ने खुद वेबसाइट बनाकर लोगों को गुमराह कर रहा होगा। तो ये जो है अल्कॉन्ट्रा, इसमें क्या है, मोस्टली पाकिस्तानी इंडियन ऑथर ने, तो ये खुद एक इंडिकेशन है, मतलब मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मोस्टली अगर हम पाकिस्तानी किसी इशू में पब्लिश कराते हैं और वो इंटरनेशनल जर्नल है, तो दैट आल्सो इंडिकेट कि दिस इज़ अ फेक जर्नल। क्योंकि
अगर आप कोई भी जर्नल देखें, क्वालिटी वाला जर्नल देखें, इवन लो क्वालिटी वाला जर्नल देखें, जो लीजिटिमेट जर्नल हो, उसके अंदर ऑथर्स की है ना वो डाइवर्सिटी होती है। अगर यूएस का जर्नल है, यूके का जर्नल है, तो उसके अंदर ऑथर यूएस के भी होंगे, यूके के भी होंगे, इंडिया, पाकिस्तान, अरब के भी होंगे। लेकिन अगर एक रशिया का जर्नल है और सारे ऑथर पाकिस्तानी, इंडियन है, तो आपको तो फिर अगला सवाल पूछना ही नहीं चाहिए कि फेक जर्नल है या नहीं। ये ऑब्वियसली फेक जर्नल है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल ये एक जर्नल है ओनोमेजिन, ठीक है। और मैं इसके दोनों लिंक जो है ये मैं खोल के दिखाता हूं एंड देन यू विल सी। एक ये लिंक है एंड दिस वन लिंक। अच्छा, मैं साइड बाय साइड सो दैट यू कैन सी। अब देखें, दोनों में लोगो एक जैसा ही लगा हुआ है। ये दो वेबसाइट्स हैं, दोनों सेम जर्नल की हैं, एचएससी अप्रूव्ड जर्नल है। इसके अंदर भी लोगो शोगो ये लगा हुआ है, आईएसएन नंबर भी उम्मीद है ये सही दिया होगा। लेकिन इसमें एक फेक जर्नल है, एक ओरिजिनल जर्नल है। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे। मिसाल मैं आपकी जगह होऊंगा, जांचने का पैमाना में चेक करता हूँ। अब जांचने का पैमाना देखें, डिटेल मालूमात है इसमें कोई? अपने आप से पूछें, नहीं है ना। अब देखें इसमें क्या है, अबाउट जर्नल, करंट इशू है, डिजिटल, बस ये। एडिटोरियल बोर्ड कौन सा है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये पहला इशारा मुझे लग रहा है कि ये कोई फेक होगा लिंक, क्योंकि मजीद मालूमात ही नहीं है। बस इनका कंसर्न ये है कि पेपर पब्लिश कर दो। दूसरा लिंक जाके देखता हूं। अब दूसरा लिंक जो है, अब दूसरे लिंक के अंदर अगेन लैंग्वेज दूसरी है। ये दूसरी लैंग्वेज का हो जाना भी एक इंडिकेशन है कि ये कोई ओरिजिनल जर्नल है। ओरिजिनल जर्नल इसलिए क्योंकि ओरिजिनल कंट्री जो भी मेरे ख्याल से स्पेन का है, तो स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं इसको ब्रिटिश में कर देता हूँ। तो दैट आल्सो इंडिकेट कि दिस शुड लुक्स ओरिजिनल जर्नल, और वो जो था वो फेक जर्नल था, किसी ने अपने नाम से मतलब क्लोन टाइप का बना दिया। इसी तरीके से एक तीसरा जर्नल है। ये तीसरा जर्नल भी ये चाइना का जर्नल है, जर्नल ऑफ जिलियन यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओरिजिनल जर्नल ये है। ये ओरिजिनल जर्नल को मैं खोल के दिखा देता हूँ एंड देन यू जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड फेक। अच्छा, ओरिजिनल खुल भी नहीं रहे, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। और ओरिजिनल नहीं खुल रहा। वो एक चीज़ ये भी देखें, मतलब ये जो है ओरिजिनल वेबसाइट में आप ये देखें नाम, ये अगर आप दोनों वेबसाइट पहले खुलती थी, लोगों ने पब्लिश भी कराए पाकिस्तानी ऑथर्स ने। अब ये वेबसाइट ओरिजिनल बंद हो गई है, वो फेक भी बंद हो जाएगी कुछ दिनों में। ओरिजिनल वेबसाइट का डोमेन क्या है, edu। फेक वेबसाइट का डोमेन क्या है, .net। जर्नल का नाम सेम है, आईएसएन नंबर सेम है, सब कुछ डिटेल सेम है, सिर्फ डोमेन का फर्क है। कुछ लोग क्या करते हैं, नाम भी सेम रख देते हैं, डोमेन भी सेम रखते हैं, लेकिन नाम में एक ए और ई का फर्क कर देते हैं ताकि देखने पे आपको नजर ना आए और आप समझे ये उसी जर्नल का लिंक है। दर हकीकत वो फेक लिंक होता है। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी कि इथिक्स, मोरलिटी और ये चीज़ अगर आप एक साइड पे भी रखें ना, फिर भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि फेक ये जो लोग आपके पास आए, कोई अप्रोच करे, ईमेल आए कि जी पैसे भेज दो, मैं आपका पब्लिश कर दूंगा 50,000 में, और आपका पब्लिश भी हो जाए और आप उसकी बेस पे असिस्टेंट से एसोसिएट भी बन जाए, लेकिन 2 महीने बाद या 2 साल बाद वो जो लिंक है वो डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और फिर आपको कभी दोबारा क्यूईसी में अगर आपसे डेटा मांगा जाए कौन कौन सी पब्लिकेशन है, आप जब लिंक देंगे वो लिंक काम ही नहीं करेगा। तो आपकी एक अभी क्वेश्चन भी आप लोगों में से किसी ने पूछा था उसी एक्सेल में कि अगर पब्लिकेशन फेक क्लोन जर्नल में हो गई है तो क्या करें। अगर हो गई तो फिर कुछ भी ना करें, फिर फातिया पढ़ें, क्योंकि आपका वो पैसे भी ज़ाया हो गए, पब्लिकेशन भी ज़ाया हो गए। क्योंकि मतलब इसकी आप लॉजिक को समझे ना, वो क्या है, एक जर्नल है, मिसाल XYZ जर्नल है, X कैटेगरी में है, US का जर्नल है, तो एक बंदा पाकिस्तान में कहीं इंडिया में बैठा होगा, वो उसकी फेक वेबसाइट बना देगा,
उसी XYZ जर्नल की, और फिर अपने बंदे मार्केट में भेज देगा फेसबुक के जरिए, ईमेल के जरिए कि पैसे कलेक्ट करो, 1 हफ्ते में पेपर पब्लिश कर देंगे। वो 50,000 60,000 रुपये लेकर आपसे पेपर लेगा, और जो कि आप पढ़े लिखे हैं, आप कहेंगे नहीं भाई ये तो आप फ्रॉड होता है, फ्रॉड नहीं। वो कहेगा नहीं आप पैसे मत दो, मैं आपको एक्सेप्टेंस दूंगा फिर पैसे देना। वो एक्सेप्टेंस भी दे देगा, फिर आपको कहे कि आपको लगे नहीं एक्सेप्टेंस से तो कुछ नहीं होता, पब्लिश होगा तब मैं दूंगा पैसे, वो कहेगा चलो ठीक है पब्लिश। तो आपको एक ऐसे ऐसे ट्रस्ट बिल्डअप होने जाता है, यार ये बंदा तो बड़ा लिजिमेट है, अगर धोखेबाज होता तो पैसे ले लेता। तो बेसिकली वो एतमाद जीतना ही तो उसका धोखा है ना। तो वो पैसे लेता है, पब्लिश कर देता है, ऑनलाइन इशू हो जाते हैं, फिर आप खुश हो जाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि मेरा पेपर पब्लिश होगा XYZ जर्नल, X कैटेगरी में, XYZ जर्नल में। लोग मुबारकबाद हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त कह देते हैं। लेकिन 2 महीने बाद जब दोबारा उस लिंक पर जाएंगे, वो लिंक डिसेबल हो जाएगा, वो लिंक काम नहीं करेगा। और वो क्यों काम नहीं करेगा? कि जिस बंदे ने वो वेबसाइट बनाई है XYZ जर्नल, पाकिस्तानी बंदा होगा या इंडियन बंदा होगा या जो अरब कंट्री में होगा, जब आप ये बात जब आप पब्लिश करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं या बताते हैं, और लोगों जो डसे हुए होते हैं, जो विक्टिमाइज होते हैं उस जर्नल के, वो आगे आके लोगों को फिला दे कि भाई इस जर्नल में ना जाओ, ये फेक जर्नल है, क्लोन जर्नल है। तब उस जर्नल के पास वो जो लोग पहले आते थे पब्लिश कराने, अब वो आहिस्ता आहिस्ता लोग आने बंद हो गए, क्योंकि लोगों को पता चल गया XYZ जर्नल फेक जर्नल है, क्लोन जर्नल है। तो अपनी वेबसाइट बंद कर देता है, फिर किसी और जर्नल के नाम से कोई और वेबसाइट बनाता है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर कोई बंदा आपके पास आता है और कहता है पैसे दो पब्लिश करा दूंगा, और आप कहते हैं ये इथिक्स मेथिक्स मोरल वैल्यू सब जाए भाड़ में, मैंने तो पब्लिकेशन करनी है, फिर भी आप ना कराएं। उसकी वजह ये है कि वो जो लिंक जिसमें वो वेबसाइट जिसमें वो पब्लिश करेगा, वो वेबसाइट कुछ अरसे बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद डिसेबल हो जाएगा। फिर आपको कोई क्रेडिट, कोई फ़ायदा कुछ नहीं होगा। वक्ती तौर पे शायद आप फ़ायदा ले लें, लेकिन वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप अगेन वो ज़ीरो हो जाएंगे। और ये सारे केसेस मेरे कुछ साथियों के साथ हुए हैं, स्टूडेंट के साथ हुए हैं, कि पब्लिकेशन की है, उन्होंने बड़ा लोगों पे बताया, पब्लिश हो गया, लोगों ने कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 6 महीने बाद वो लिंक डिसेबल हो गया, तो मजबूरन उन्हें CV से भी हटाना पड़ा, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं है उस चीज़ का। अच्छा, दूसरा ये एक जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल मल्टी कल्चर एजुकेशन। ये इसकी भी आपको ईमेल वगैरह आती होगी कि सब कहते होंगे $200 तो आपका पब्लिश कर दूंगा। अब इसमें 2 तरह के लिंक्स हैं, एक फेक एक क्लोन है। देखें, मैं इसको खोलता हूँ एंड देन हम खुद दोनों इसको चेक करते हैं, आपको क्या लगता है इसमें फेक कौन सा होगा, ओरिजिनल कौन सा होगा। अभी मैं नहीं बता रहा आपको कि ओरिजिनल कौन सा है, फेक कौन सा है, जस्ट सी द वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट का तायराना नज़र लें, यानी इसका एक चेक करें, अल्ट्रासाउंड करें कि क्या क्या चीज़ है। जो मैंने करेक्टरिस्टिक्स बताई है उसमें से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। एडिटोरियल प्रोसेस है, आर्काइव है, स्पेशल इशू है, डिटेल भी है, सबमिशन प्रोसेस में का सबमिशन है। अच्छा, दूसरा आप ये देख लें, अच्छा एक दूसरी बड़ी बात ये देख लें कि आर्काइव में या करंट में देख लें कि एक इशू में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने हैं, 4 हैं। चलो कुछ हद तक बेहतर लग रहा है। और भी देख लें, आर्काइव में गए 5-6 आर्टिकल, तो मुझे ये ओरिजिनल लग रहा है। लेकिन अच्छा, दूसरा आर्टिकल देखते हैं, दूसरी वेबसाइट देख लें। अब मैं इसको साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि आपको होम पे आया। अब आपको नजर आ रहा है ये 2 अलग अलग वेबसाइट्स हैं। 2 अलग अलग वेबसाइट्स के अंदर सेम नेम है, मल्टीकल्चरल एजुकेशन, सेम लोगो है और सेम सब कुछ डिटेल है। ISSN नंबर भी सेम है। डिटेल जो इंफॉर्मेशन अबाउट PRG लाइक इंटरव्यू पीयर रिव्यू जर्नल फॉर स्कॉलर, ये भी सेम लिखा हुआ है, हर चीज़ सेम है, लेकिन एक फेक एक ओरिजिनल है। अच्छा, अब इसको इसमें देखें, इसमें क्या है। अब इसमें जो बड़े इशारे हैं, बड़े इशारे मैंने आपको बताया कि जब आपको इस तरह का लोगो नजर आए ना इसको पास, ये कोई लाजमी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का आपको नजर आए ना जिसमें Q1 लिखा हो, Q2 लिखा हो, ये खुद एक ड्यूबियस एक्टिविटी है, क्योंकि बेसिकली जो OGS में जर्नल बनाता है वो प्लगइन है, ये प्लगइन ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसके भी इश्यूज देखते हैं। आर्काइव में गए, ओपन इश्यूज में आए। अब ओपन इश्यूज में देखें, ये स्क्रोलिंग से अंदाजा हो रहा है कितने सारे आर्टिकल्स हैं।
तकरीबन 1200 पेजेस पे है और तकरीबन 200-250 आर्टिकल्स हैं और 200-250 आर्टिकल में ज़्यादातर ये ना उसके इंडियन पाकिस्तानी आथर होंगे। नाम से आपको नज़र आ जाएगा इंडियन पाकिस्तानी आथर है। इसी तरह बाकी अगर एक दो इशू और देख ले, सारे पाकिस्तानी इंडियन आथर भरे हुए होंगे। सो दैट इंडिकेट कि ये फेक क्लोन जर्नल है। क्लोन जर्नल है, ये मल्टी कल्चर HSC अप्रूव्ड जर्नल है, लेकिन HSC अप्रूव्ड जर्नल का जो वेबसाइट है वो ये वेबसाइट नहीं है, कोई और वेबसाइट है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या 1 साल के अंदर अंदर यह लिंक भी डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि लोग रिपोर्ट करते हैं ना, फिर ये जो मल्टी कल्चर वाला जो ओरिजिनल है वो फिर रिपोर्ट कर देता है और फिर ये अल्टीमेटली उनको बंद करने पड़ जाती है वेबसाइट। सो ये फिर अगेन ये भी एक कॉन्ट्रा जर्नल, ये इसका भी मैंने आपको बता दिया कि अच्छा, अब जर्नल चेक करने का भी एक तरीक़ेकार है, वो है स्कूपस ने एक अपना हर जर्नल का एक इंडिकेशन बनाया हुआ है। ये स्कूपस का एक लिंक है, मैं आपसे ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। इस स्कूपस पे आप किसी भी जर्नल की डिटेल आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो भी आप जर्नल जिस पे आप पब्लिश करना चाहते हैं ना, उसका जर्नल का आप डिटेल चेक कर लें कि वो उसका होम पेज भी आ जाएगा, उसका कंट्री भी आ जाएगा, कॉन्टेक्ट डिटेल भी आ जाएगा और बाकी डिटेल भी आ जाएगी, हाउ टू पब्लिश हो, तो ये होम पेज भी आ जाएगा, ISA नंबर। तो ये जो इंफॉर्मेशन है लाइक जर्नल ऑफ मल्टी, ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है बिकॉज इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्कूपर्स डेटाबेस। इसमें यह भी मेंशन होता है कि जर्नल डी लिस्टेड तो नहीं है। एक कुछ जर्नल ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यू नहीं होते, लाइक फॉर एग्जांपल इसकी कवरेज 1980 से 2022 तक है, तो अभी 2023-24 का स्टेटस वाजे नहीं है। अगर कोई जर्नल डी लिस्टेड हो जाता है तो वो भी मेंशन होता है इस वेबसाइट के अंदर। दूसरा ये भी है कि इसमें आगे नीचे रिव्यू कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी रिव्यू भी लिखती है। अगर ये जर्नल की कोई फेक वेबसाइट भी है, क्लोन वेबसाइट भी है, तो कहीं ना कहीं रिव्यूअर ने जो भी ऑथर्स है वो मेंशन कर देते हैं कि भाई इसका फेक वेबसाइट मार्केट में चल रही है, उससे आप बच के रहें। और अगर आपने मजीद मालूमात लेनी है इस जर्नल के तो अपने कमेंट्स सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं। जर्नल का जो एडिटर है वो ऑटोमेटिकली आपको रिप्लाई दे देगा। तो ये होम पेज है, इस पर क्लिक किया आप जर्नल के होम पेज पे आ जाएंगे। ये टेरा एंड फ्रांसिस का जर्नल है। तो कोई भी जर्नल की लीजिटिमेटी चेक करने का ये एक वेबसाइट है जिसमें आप स्कूपस का जो इंफॉर्मेशन है वो सारी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, अब एक एक्टिविटी करते हैं, जब थोड़ा सा उसको यूज चेक करते हैं कि आपने क्या सीखा, क्या समझा। ये एक जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, मैं आपको दोनों लिंक दे रहा हूं और आपका काम ये है दोनों लिंक पे जल्दी से क्विकली जाएं और मुझे बताएं कि इसमें से फेक कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको नाम देता हूं नंबर 1, नंबर 2। दोनों लिंक पे क्विकली जाएं और वेबसाइट को जरा थॉरोली क्विकली चेक करें 2 मिनट के अंदर। और आपको क्या लगता है कि नंबर 1 जर्नल फेक है या नंबर 2 जर्नल फेक है? Quickly please. Just to tell me which is the correct website for the International Journal of इस प्रैक्टिस का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप खुद आइडेंटिफाई कर सके फेक जर्नल कौन से हैं, ओरिजिनल जर्नल कौन से हैं।
जी चेक कर रहे हैं या बस मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ूँ? व्हाट आवर मंथली इश्यूज का जवाब दे दिया मैंने. और देन if the clone website is the same as the original one, then how to identify the fake? Is I just told you that issues publication बहुत ज़्यादा होगी. And then it means all the Wikileaks journal social in Pakistan are fake too? No, ये ज़रूरी नहीं है. That is not important. ये तमाम पाकिस्तानी जर्नल जो हैं वो legitimate हैं, जो HSC approved है. What is mean by academic or practice leadership? अच्छा है. What is mean by the peer review mean by single double and open review? सही है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ. And then if you submit article to a journal with one find out during publication process that review process is dubious and then they publish your article in with your email, then do not publish, not what can we do? अच्छा, अब वो जो ये कौन थी सबिया शमीम ने जो क्वेश्चन पूछा है कि अगर पेपर भेज दिया और बातें पता चला, पहली बात तो ये कि आप ईमेल कर दें कि जी पेपर पब्लिश ना करें, और बकौल आपने किया है लेकिन फिर भी पब्लिश कर दिया, तो ये तो बहुत गलत हरकत की उन्होंने. अब एक मिनट बताता हूँ. हेलो, वालेकुम सलाम. जी शुक्र. डिस्टर्ब कर लिया, अब तो कॉल लें, बोलें जल्दी से. जी जी ठीक है मैं देख लेता हूँ. ओके. अच्छा, अगर पब्लिश कर दिया उसने तो बेहतर तो ये था कि आप उसको कह दे कि पब्लिश होने के बाद भी कह दे कि इसको ख़त्म कर दे, रिमूव कर दे, ताकि आप कहीं और भेज दें. और अगर रिमूव नहीं करता, आपको रिप्लाई भी नहीं करता, तो बस फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो आप बस वो ख़त्म हो गया. अब इसके अंदर एक और भी एस्पेक्ट है जो कि डिबेटेबल है. मैं अपना ज़ाती ख्याल बता रहा हूँ, मैं कोई रूल नहीं बता रहा, पॉलिसी नहीं बता रहा है चीज़. मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर मैं एक पेपर भेजता हूँ किसी भी जर्नल में, वो जर्नल में पब्लिश हो जाता है और बाद में पता चलता है मुझे कि वो फेक जर्नल है, तो मैं एक ईमेल कर दूंगा कि भाई मेरा पेपर ना पब्लिश करो. लेकिन फिर भी पब्लिश उन्होंने कर दिया, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं फिर कोशिश करूँगा उस पेपर को थोड़ा सा रिफ्रेश करके किसी और जर्नल में भेज दूँ. मेरे पास एक एविडेंस होगा कि मैंने ये पेपर वहाँ भेजा था, लेकिन वहाँ से मैंने रिट्रीव कर दिया थ्रू ईमेल, और मेरे पास अब जो है दूसरे जर्नल में भेज रहा हूँ. आप एक सीवी के अंदर ही ना एक पेपर का एक ही बेनिफिट ले सकते हैं. तो अगर पेपर फर्स्ट जर्नल में पब्लिश कर दिया, आपने रिट्रीव कर दिया, सेकंड में भेज रहे हैं, तो आप सीवी पे सेकंड जर्नल का लिख सकते हैं, एक ही आर्टिकल के दो पब्लिकेशन नहीं लिख सकते. तो मैं होता तो यही करता. हाउ कैन डिटेक्ट फेक लिंक? फेक लिंक कैसे डिटेक्ट करेंगे? फेक लिंक का मैंने आपको ये बता दिया, एक वेबसाइट है स्कूपस की वेबसाइट. अभी आपको मैंने इसमें पीपीटी पे भी दिखाया है. where is yes this ये स्कूपस की एक वेबसाइट है, शोमेगो जीआर वेबसाइट. इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो इसका फेक लिंक कौन सा है, ओरिजिनल लिंक कौन सा है. लेकिन दूसरी बात ये कि आप खुद भी तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अभी भी मैंने आपको दो लिंक भेजे हैं, ये मिसाल रिजवान आजम साहब हैं, तो ये अभी आपको मैंने दो लिंक दिए हैं. ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये डिटेक्ट कैसे करेंगे. तो आपको आई होप कि मेरा खुद अपने आंसर दे सकते हैं अपने क्वेश्चन का. अच्छा, शुड आई यूज द रेफरेंसेस फ्रॉम फेक जर्नल? यू शुड अवॉइड रेफरेंसेस फ्रॉम द फेक जर्नल. उसकी कोई लेजिटिमेटली होती है, क्योंकि उसकी पब्लिकेशन का खुद वो एक्सेप्टेंस ही ख़त्म हो जाती है. कभी आप कहीं दूसरा मौका मिले ना, इंशाल्लाह आपको पब्लिकेशन का अच्छा जी, ये जो है हाउ टू शुड आई यूज कहा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि फेक जर्नल का लिंक का कैसे पता चलेगा. तो ये फेक जर्नल का मैंने आपको वेबसाइट शेयर कर दी, उससे आपको पता चल सकता है. दूसरी बात ये है कि ये जो भी आपको मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, इससे आपको अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि फेक कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है. अभी भी मैंने आपको दो लिंक दिए, उस दो लिंक में आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फेक कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है. विच मीन्स यू कैन नो बाय योर सेल्फ हाउ टू आइडेंटिफाई फेक जर्नल.
दूसरा, ये रिजवान आजम साहब ने पूछा, शुड आई यूज द रेफरेंस फ्रॉम द फेक जर्नल? यू शुड नॉट यूज द रेफरेंसेस फ्रॉम द फेक जर्नल। वो आप कर सकते हैं, कोई मजायका नहीं है, लेकिन आपकी जो एक्सेप्टेंस के चांसेस कम हो जाएंगे। वो इसलिए, कभी टाइम मिलेगा ना, मैं आपको पब्लिकेशन का भी गुण बताऊंगा कि पब्लिकेशन के भी चांसेस बढ़ाने के कुछ तरीक़ेकार होते हैं। वो ये कि अगर आप पब्लिकेशन में साइटेशन क्वालिटी जर्नल से होंगे ना, तो जो एडिटर है वो ऐसे आर्टिकल्स को प्रिफर करता है जिसमें साइटेशन टॉप जर्नल्स की हो, क्योंकि अगर उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके जर्नल की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑथर, जो एडिटर है किसी भी जर्नल्स का, वो अपना फ़ायदा देखता है ना, वो अपना फ़ायदा ये देखता है कि मेरे पास क्वालिटी पेपर भी हो और मेरे पास वो क्वालिटी पेपर हो जिसने साइटेशन टॉप जर्नल्स को की है। क्योंकि टॉप जर्नल को साइट किया होगा ना आपने, Q1 रैंक के जर्नल को या अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल को साइट किया होगा, तो आपके एक्सेप्टेंस चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि एडिटर अगर पब्लिश कर देता है वो पेपर, तो उसके जर्नल की क्वालिटी इंडिकेटर बढ़ जाते हैं। तो ये एक सिंपल मैथमेटिकल साइंस है। आप इसको थोड़ा समझ जाएंगे ना, तो आप फिर उन्हीं टॉप क्वालिटी जर्नल को साइट करेंगे, क्योंकि उससे एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुड आई रिप्रोड्यूस द पब्लिकेशन ऑफ द फेक जर्नल इनटू द ऑथेंटिक जर्नल? मैं तो इसको फिलहाल तो अब सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि रिप्रोड्यूस का मतलब तो ये है कि आपका पब्लिश हो चुका है, आप दूसरा कर रहे हैं, तो आई विल नॉट अवॉइड। बेहतर ये है कि बस अब जो हो गया सो हो गया। अब आप जो भी काम करें एटलीस्ट वो ऑथेंटिक जर्नल पे हो। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी तरफ जो टास्क दिया था, एंड देन आई विल सिंपली चेक फ्रॉम हियर। अच्छा, तो ये अवामी जो राय है, अवामी राय के मुताबिक जो पहला लिंक है, इंटरनेशनल स्पीड कॉम एजिस इज 100%, क्या था, विच वन इज द करेक्ट वेबसाइट, दूसरा जो है वो फेक। और आपने कैसे, मैंने तो नहीं बताया ना, आपने खुद कैसे आइडेंटिफाई किया है? वेबसाइट को एक्सप्लोर किया होगा। इसकी वेबसाइट आपको एक प्रोफेशनल डिटेल और उसकी वेबसाइट एक बिल्कुल एक थकी हुई या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ आपको लगी होगी। So that is one of the indication of fake and clone journal. Okay जी, now again is quickly ये भी कुछ लिंक्स हैं, ये तो हो गया। ये भी कुछ लिंक्स हैं जिसमें ओरिजिनल जर्नल और प्रीडेटरी जर्नल्स के लिंक्स हैं, जिसमें अलकॉन्ट्रा है, मल्टीकल्चर, ये भी सारे लिंक्स हैं। और मैंने आपको बताया एक लिंक शेयर किया है जिसमें आप किसी भी जर्नल की होम पेज पे या जो उसका ओरिजिनल जर्नल का लिंक है वो भी चेक कर सकते हैं। जब भी किसी जर्नल्स पे आप पेपर भेजें, पहले जर्नल की वेबसाइट को खुद चेक करें। जर्नल की वेबसाइट आपको ऑथेंटिक लगती है तो वेल एंड गुड, नहीं भी लगती, थोड़ा डाउट भी होता है, ये स्कूपस की जो वेबसाइट का लिंक भेजा इस पे चेक करें और ये देख करें उस जर्नल में कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए। अगर उस जर्नल के एक इशू में कोई 50-60 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं ना, तो दैट आल्सो इंडिकेट कि ये फेक एंड प्रीडेटरी जर्नल है। एक और मैं एक जल्दी से एक्टिविटी करा देता हूँ, देन विल लीव द 3:30 हो गए। द इंटरनेशनल ऑफ लर्नर डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिफिकेशन। सो मैं यहाँ पर यही पूछ रहा हूँ, यस, ये दो लिंक दिए मैंने, एक जर्नल के और इसमें, और फिर मैं एक मेंटीमीटर पे आप जस्ट रेड कर दें कि आपके ख्याल से कौन सा ओरिजिनल जर्नल है और कौन सा फेक जर्नल है। यूजुअली जर्नल फेक होना भी एक बात होती है और फेक लिंक होना भी दूसरी बात होती है। तो मैंने दो लिंक दिए, प्लीज गो क्विकली एंड टेल मी व्हिच वन इज द फेक एंड व्हिच वन इज द लेजिटिमेट। मेंटीमीटर पे आप सिंपली अपना रेट दे दें।
जी प्लीज क्विकली। विच वन मेंटीमीटर का लिंक दिया है लास्ट में, जस्ट सिंपली क्लिक विच वन इज फेक विच वन, या जस्ट टेल मी विच वन इज द ओरिजिनल एंड विच वन इज द फेक, विच वन इज द ओरिजिनल जर्नल। Meanwhile, I will read the questions. What is mean by ISI indexing? ISI indexing भी एक indexing agency है, but that indexing agency so far is not approved by HSC. So if you are in Pakistan, if you are working in Pakistani academia, then you should not focus on ISI. पाकिस्तान में currently दो indexing agency जो approved है, एक Scopus, दूसरी वेब ऑफ साइंस। तो जर्नल अगर स्कूपस इंडेक्स, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स हो तो फिर उसको कंसीडर किया जा सकता है। तो AGRS में जो भी जर्नल्स हैं वो या तो स्कूपस इंडेक्स हैं या वेब ऑफ साइंस इंडेक्स हैं, या फिर वो पाकिस्तानी जर्नल हैं जिसको HSC ने अप्रूव किया है थ्रू रिव्यू कमेटी। Does AGR लिस्ट ऑफ जर्नल्स इंक्लूड ऑल जर्नल्स, ऑल ओरिजिनल जर्नल्स? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जर्नल्स AGRS में जितने भी हो तमाम ओरिजिनल जर्नल है। ओके, मसला जो है वो फेक लिंक का होता है। तो जर्नल मिसाल के तौर पे आपको ये जर्नल में आपको दिखा रहा हूँ, ये जर्नल जो है AGRS लिस्ट में मौजूद है, लेकिन जो मसला है वो मसला क्या है कि फेक लिंक, किसी ने फेक वेबसाइट बनाई हुई है ताकि आपको धोखा दे सके कि देखो मैं आपका AGRS लिस्टेड जर्नल एक्स कैटेगरी जर्नल पब्लिश करा दूंगा और इस जर्नल में हो जाएगा, लेकिन वो जो लिंक जिसमें पब्लिश कराएगा वो फेक होगा। तो फेक जर्नल होना एक बात है, AGRS में कोई भी फेक जर्नल नहीं है। फेक लिंक होना दूसरी बात है, और AGRS में जर्नल ऐसे हैं जिनके फेक लिंक भी हैं, और वो फेक लिंक बनाने वाले कौन से, वो यही हमारे पाकिस्तानी इंडियन होंगे ज़्यादातर, जो खुद एक जगह पर एक कंप्यूटर पर वेबसाइट बनाते हैं एंड देन वो बंदे भेज देते मार्केट में कि जी पेपर लाओ पब्लिश करते, पेपर लाओ पब्लिश करते। अच्छा जी, अब इसमें आपको मैं वैसी सरसरी दिखा दूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और सब ने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है फेक और ओरिजिनल का। देखें, पहले इस जर्नल का मुआयना करते हैं। इस जर्नल में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लर्नर डाइवर्सिटी आइडेंटिटी, अच्छा कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, फ़ोन नंबर भी दिया है, ईमेल एड्रेस भी दिया है। ईमेल एड्रेस जो है, डोमेन नेम भी सही है, तो फिलहाल तो मुझे इसमें तो कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, लेकिन इसमें इन्होंने व्हाट्सएप का भी दिया हुआ है कि भाई आ जाओ डायरेक्ट फ़ोन पे बात करते हैं, तो व्हाट्सएप दिया हुआ है, विच मीन्स जस्ट क्विकली कम्युनिकेशन, जैसे कोई वो दराज में कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। वो पेपर सबमिशन का बटन दबाते हैं, पेपर सबमिशन पे देखते हैं क्या हो रहा है। पेपर सबमिशन में एक सिंपल फॉर्म है, टाइटल ब्ला 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 अपलोड करना है, तो दैट आल्सो इंडिकेट कि ये भाई डूबियस एक्टिविटी है। अगर कोई जर्नल आपसे पेपर इस तरह मांगे, एक सिंपल फॉर्म से मांगे या फिर ईमेल के जरिए मांगे, कभी भी ना भेजें, कभी भी ना भेजें, क्योंकि वो 99% वो फेक जर्नल है या डूबियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। दूसरा जो लिंक है, वो लिंक ख़त्म हो गया है, लेकिन दूसरा लिंक जो था ये, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा ये जो चीज़ है, दिस वन, अब दिस वन लुक समहाउ प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल इसलिए भी कि ISSN नंबर प्रिंट दिया है, ऑनलाइन दिया है, DUI नंबर दिया हुआ है,
और बाकी एडिटोरियल बोर्ड, अबाउट, ऑथर गाइडलाइंस, आर्टिकल, सबमिशन, ये सब डिटेल्स दी हुई है। और अगर हम किसी इशू पे जाते हैं तो हमें आर्टिकल्स की भी डिटेल पता चल जाएगी, कितने आर्टिकल्स एक इशू में पब्लिश हुए हैं। So this website somehow looks professional, original, rather as compared to the previous website। और दूसरा ये क्वार्टरली है जो कि मेंशन है, तो अगर एक साल में 4 किए हैं तो ओरिजिनल है, 4 से ज़्यादा 6, 7, 8 किए हैं तो दैट आल्सो इंडिकेट कि ये फेक जर्नल है। और इसको फिर हम यही जो मैंने आपको वो वेबसाइट्स दिखाई थी, ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पे भी जाकर आप इसको सिंपली जर्नल के नाम को यहाँ कॉपी करें, पेस्ट करें, हाँ जी ठीक है, इंटरनेशनल, हाँ ये जर्नल को अगर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और उस जर्नल की भी सारी डिटेल्स वगैरह आ जाएगी। तो आपको वेबसाइट देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फेक है, क्लोन है। फेक वेबसाइट में ज़्यादा डिटेल नहीं होती और ओरिजिनल वेबसाइट में ज़्यादा डिटेल होती है। पब्लिकेशन, नंबर ऑफ आर्टिकल फेक प्रीडेटरी वेबसाइट पे ज़्यादा होंगे, ओरिजिनल वेबसाइट पे 10-15 से ज़्यादा नहीं होंगे। इश्यूज़ को देखें, फ्रीक्वेंसीज को देखें और सब कुछ से मुतमईन भी हो जाएं, देन उस जर्नल को स्कूपर्स के डेटाबेस पे देखें मौजूद है या नहीं है। सो दिस इज एक्टिविटी आई शो। सो इसमें जो फर्स्ट लिंक था जिसमें ये SGS स्कॉलर, ये ओरिजिनल है और सेकंड लिंक जो है वो फेक है। देन ये अगेन ये मैंने जस्ट यही शो कराया कि ये जो ओरिजिनल वेबसाइट है ये फेक वेबसाइट है और ये HGRS में भी मौजूद है और लोगों को ट्रैप करने के लिए कि वो पेपर पब्लिश कर सकते हैं। और हमेशा ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपका पैसा, टाइम, एनर्जी, नॉलेज महफूज रहेगा, अदरवाइज इट विल बी वेस्टेड। एंड दिस इज आल्सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फेक जर्नल, प्रीडेटरी जर्नल। अच्छा, दूसरा ये कि अब चूंकि ये HGRS के अंदर जो जर्नल्स होते हैं उसका होम पेज नहीं आता, तो मैं अभी एक सिस्टम बना रहा हूँ, जर्नल फाइंडर सिस्टम। उसमें अगर आप टाइटल लिखें, क्योंकि ये जर्नल का फेक क्लोन होना तो एक इशू है, टारगेटेड जर्नल को तलाश करना भी एक इशू है कि मैं जर्नल, अपना पेपर किस जर्नल में भेजूं। तो मैं एक सिस्टम बना रहा हूं और जैसे ये हो जाएगा मुकम्मल आपसे शेयर कर दूंगा कि जिसमें आप टाइटल ऑफ द पेपर लिखें, एब्स्ट्रैक्ट लिखें और कीवर्ड्स लिखें अपने पेपर की जो भी आपने बनाया और सर्च जर्नल करना है। सर्च में अगर आप कहते हैं स्कूपर्स इंडेक्स करना है, उस पर चेक लगा दें, एक्स कैटेगरी में करना है, एक्स कैटेगरी में चेक लगा दें, सर्च कर दें, तो आपको जर्नल सजेस्टेड आ जाएंगे जो कि HAC अप्रूव्ड भी होंगे और उनके होम पेज भी लीजिमेट वाले नजर आएंगे। तो इस सिस्टम से आप क्लोन, फेक पब्लिकेशन से भी बच जाएंगे। और जो सबसे बड़ा बर्डन है कि आपको ये पता नहीं होता, सबको अक्सर हमें भी, कि हमें पेपर किस जर्नल में पब्लिश कराना है, तो वो जर्नल भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा यहाँ से। ये जर्नल आइडेंटिफाई सिस्टम अभी बन रहा है, जैसे बन जाएगा मैं आपसे शेयर कर दूंगा, जिसमें HGRS के जितने भी जर्नल्स हैं वो सारा का डेटाबेस में मौजूद होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई पब्लिकेशन करनी है रेपोर्टेबल जर्नल में, तो ये 3 क्राइटेरिया हैं, 3 से 4। एक तो ये कि चेक द आर्टिकल इन द करंट एंड प्रीवियस इश्यूज, यूजुअली फेक, क्लोन, प्रीडेटरी जर्नल हैव मेनी आर्टिकल्स, मोर देन 20-30 आर्टिकल्स इन इशू, while original journal website has limited number of articles in issue, usually 10 से 15 होते हैं। दूसरा, मेक श्योर करें पब्लिशर इज ऑन कोप जो है वो इथिकल गाइडलाइंस कमेटी है जो कि जर्नल्स और पब्लिशर्स को वो करती है, यानी कि उनकी मेंबरशिप लेती है। चेक द बेल लिस्ट में जो होता है वो प्रीडेटरी फेक जर्नल की लिस्ट भी मौजूद होती है, तो ये भी नेट पे अवेलेबल है और इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। फोर्थ, चेक द thinkchecksubmit.org, ये एक वेबसाइट है thinkchecksubmit.org। इसके अंदर इन्होंने चेकलिस्ट दी हुई है कि किसी भी जर्नल की लिजिमेटी चेक करने का क्या पैमाना होगा, तो वो थिंक यानी सोचें, चेक करें एंड देन सबमिट करें जर्नल के बारे में या इवन बुक के बारे में भी या कॉन्फ्रेंस पेपर के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से जर्नल फेक है इस तरह बुक पब्लिशर भी फेक हैं, कॉन्फ्रेंसेस वाले भी फेक घूम रहे हैं। तो ये थिंक चेक सबमिट के अंदर ये सब चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हैं।
और नंबर 5 है चेक जर्नल डिटेल ऑन दिस वेबसाइट, जो कि आई ऑलरेडी शेयर विथ यू। देन दिस इज द टिप्स फॉर सिलेक्टिंग जर्नल। एसवीएस का भी जर्नल फाइंडर है, स्प्रिंगल का भी जर्नल फाइंडर है। आपने शायद यूज किया हो, अगर किसी ने नहीं किया हो तो मैं जस्ट एक सिंपल क्लिक कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एसवीएस का जर्नल फाइंडर है, इसमें इंटर योर एब्स्ट्रैक्ट एंड वंस यू एंटर द एब्स्ट्रैक्ट इट विल ऑटोमेटिक एंड फाइंड द जर्नल। दिस पेपर इज about the research in Pakistan mainly focus on the assessment and methodology. Just I write something and find journal. ये एल्सवियर का सिस्टम है, ये क्या करता है, ये जर्नल फाइंड आउट करके देता है आपके लिए। ये जर्नल फाइंड आउट कर दिया, इसमें इसने बता दिया ये जर्नल आपके आर्टिकल्स एब्स्ट्रैक्ट से मैच करता है, जिसमें उसका इम्पैक्ट फैक्टर, एक्सेप्टेंस रेट 27%, टाइम टू फर्स्ट डिसीजन 6 वीक, टाइम टू पब्लिकेशन 4 वीक और फ्री ऑफ चार्ज है ये। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लेजिटिमेट है, इसमें कोई फेक कोई क्लोन नहीं है, क्योंकि ये एल्सवियर की ओरिजिनल वेबसाइट से मालूमात आ रही है। तो अगर आप किसी भी जर्नल पे जाते हैं ना, किसी भी जर्नल, मिसाल अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट क्लिक किया, ओपन न्यू विंडो, ये जो वेबसाइट है ये बगैर किसी शक व शुबा की ओरिजिनल वेबसाइट है, क्योंकि स्कूपस ये एल्सवियर के ओरिजिनल प्लेटफॉर्म से मिली है। और ये एक्सेप्टेंस है 27% है, तो ये भी अच्छा मुझे लग रहा है, क्योंकि 27% एक्सेप्टेंस रेट होना बहुत ज़्यादा है। किसी भी जर्नल का अगर 10 से 15 से ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेट है, दैट इज़ अ गुड नंबर। 7 days in the time of first decision, 21 days on review time and 19 days of acceptance, और इसकी कोई चार्जेस भी नहीं है। तो आप यहाँ पे आथर गाइडलाइन देकर पेपर पब्लिश कर सकते हैं। तो जर्नल फाइंडर सिस्टम आपको सजेस्टेड जर्नल देता है बेस्ड ऑन द योर एब्स्ट्रैक्ट एंड कीवर्ड्स, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा एक्सेप्टेंस रेट कितना है, टाइम कितना लगेगा प्रोसेसिंग में, और पब्लिकेशन चार्जेस हैं या नहीं है। और बाकी आप इसको थोड़ा सा छेड़ेंगे खेलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें मजीद भी हम शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर कितना हो, टाइम कितना लगे, एक्सेप्टेंस रेट कितना हो, वगैरह वगैरह। देन ये स्प्रिंगल जर्नल सिस्टम, ये स्प्रिंगल का है, ये अभी मैंने दिखाया एल्सवियर का, और इस पे अगर आप स्प्रिंगल के जाएंगे तो स्प्रिंगल का जर्नल सिस्टम भी आ जाएगा, जिसमें आप कोई भी जर्नल आप सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह। और कमिंग ये एक और लिंक है जिसमें जो भी स्पेशल इशू रिलीज होते हैं या होने वाले होते हैं उसका भी डिटेल मौजूद होती है। तो पुट योर एब्स्ट्रैक्ट इन जर्नल फाइंडर इन ऑर्डर टू सो दैट यू कैन चूज द रिलेवेंट जर्नल एंड टारगेट जर्नल, and remember that sending your paper to irrelevant takes too much time and finally it becomes wasted time is money। आपने रिजेक्शन अक्सर यही आती है कि ये जर्नल उस स्कोप पे पूरा नहीं उतरता, तो वो स्कोप इसलिए पूरा नहीं उतरता कि आपने उस जर्नल को स्कोप को देखकर उस फील्ड को देख के आपने भेजा ही नहीं है। तो अगर ये जर्नल फाइंडर सिस्टम यूज करेंगे एटलीस्ट आप फेक क्लोन जर्नल से भी बचे रहेंगे और आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, ये था लास्ट किया, डोंट सबमिट पेपर इफ, पेपर बिल्कुल भी सबमिट ना कराएं अगर जर्नल इज आस्किंग पेपर सबमिशन वाया ईमेल। कोई भी जर्नल एडिटर या बंदा आपसे पेपर बाय ईमेल मांगता है, सबमिट ना कराएं। कोई भी वेबसाइट जिसमें इंपैक्ट फैक्टर फेक किस्म की लिखी हुई है, क्वार्टाइल रेंज लिखा है, Q1 रेंज, Q2 रेंज, दैट इज अ डू नॉट सबमिट योर पेपर। सो डोंट सबमिट पेपर इफ समवन इज आस्किंग मनी विद द प्रॉमिस टू गेट योर पेपर पब्लिश इन अ वीक। बिल्कुल भी ना कराएं, बेशक वो कितने भी प्रॉमिस या होप दे, क्योंकि वो लाजमी बात है, वो फेक और प्रिपरेटरी जर्नल है। डोंट सबमिट अ पेपर इफ जर्नल हैज मोर देन 25 आर्टिकल्स इन अ सिंगल इशू। यूजुअली जितने भी अच्छे जर्नल्स हैं उसके 10-15 आर्टिकल्स होते हैं, 20 का चलो मार्जिन रख देते हैं, लेकिन अगर 25-30 आर्टिकल्स हैं एक इशू में तो दैट इज ऑब्वियसली फेक और प्रिपरेटरी जर्नल। और अगर किसी भी डोंट सबमिट अ पेपर अगर इफ अ जर्नल मोस्ट ऑफ द आथर है फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्री, पाकिस्तान की सारे आथर भरे हुए हैं या इंडिया के सारे आथर भरे हुए हैं, दैट आल्सो इंडिकेट कि ये डूबियस किस्म का जर्नल है जो मखसूस मुल्क से चल रहा है, नाम उन्होंने फेक की दिया हुआ है। ऐसे भी जर्नल होते हैं, वेबसाइट होती है, नाम लिखा हुआ यूएसए का, यानी यूएसए ओरिजिन, जर्नल भी यूएसए ओरिजिन, आथर सारे पाकिस्तानी भरे हुए।
ये जो मैंने आपको शुरू में एक दिखाया था, स्पेन का जर्नल था, स्पेन लोकेशन लिखी हुई थी लेकिन आथर सारे पाकिस्तानी थे, तो दैट इज आल्सो अ फेक और डूबियस जर्नल. And best practice is to avoid fake journal. Check all the characteristics of fake journal described in the initial slide. जो मैंने आपको 2-3 स्लाइड से बताया था, उसको वो characteristics चेक करें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि फेक जर्नल कौन सा है. So you will get yourself safe from the fake journal. वेरीफाई जर्नल क्रेडेंशियल्स एंड इंडेक्सिंग. जर्नल वो क्लेम करता है कि स्कूपस इंडेक्स है, तो पहले तो चेक करें वाकई है या नहीं. अगर नहीं है तो पहली सूरत में रिजेक्ट करते हैं उस जर्नल को, क्योंकि जब वो वेबसाइट में झूठा क्लेम नजर आ रहा है तो बाकी इंफॉर्मेशन भी झूठी होगी. असिस द जर्नल वेबसाइट इन कम्युनिकेशन. डिटेल उसकी वेबसाइट को देखें, लुक को देखें, मालूमात पूरी है या नहीं है. लुक फॉर द जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्स. वो ट्रस्टेड सोर्स कौन से, स्कूपस है, वेब ऑफ साइंस है. चेक जर्नल होम पेज बाय इंडेक्सिंग डेटाबेस, यानी स्कूपस की वेबसाइट पे जाकर उस जर्नल का होम पेज चेक करें, और जिस वेबसाइट को आप चेक करें उसका भी होम पेज चेक करें कि या सेम है या डिफरेंट है. दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. बाकी ये टिप्स फॉर बिफोर पेपर सबमिशन है. अगर आर्टिकल मुकम्मल हो जाता है तो वो कैसे, तो जर्नल को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि फेक कौन सा है, क्लोन कैसा है, और अच्छे जर्नल कौन से, लेजिटिमेट जर्नल कौन से, ये सारा मैं ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ. बाकी आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आपको एक आइडिया हो जाएगा. मुख्तलिफ वेबसाइट जब एक्सप्लोर करेंगे यू विल गेट द आइडिया, यू विल क्लियरली गेट द आइडिया कि ये फेक जर्नल है और ये ओरिजिनल जर्नल है. यू डोंट नीड टू आस्क मी अ क्वेश्चन, क्योंकि उस क्वेश्चन, जैसे अभी आप क्वेश्चन पूछें हाउ टू आइडेंटिफाई द फेक लिंक, I just give you 2 examples and you are able to identify the fake link by yourself. So similarly, when you go to these practices, go to some websites, then you will identify कि original websites journals की कैसी होती है. I hope कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा. ये basically एक awareness session था, और थोड़ा you will get some practice and you will understand those things. So keep yourself safe from the fake people, scam, and make a legitimate publication. Thank you so much. If you have any question, feel free to ask. Why HSC is not adding original link in HGRA website? You should ask this question to HSC, but I asked this question, I provided this suggestion. HSC said that maybe some journal changes their links. So if they changes their link, then how can we change the link again and again? क्योंकि HGRA साल में एक बार अपडेट होता है, तो उनका ये क्लेम है कि एक जर्नल जनवरी में लिंक चेंज कर देता है और हमारा पुराना लिंक है, तो फिर लोग कंप्लेन करेंगे कि तो आपने लिंक ही अपडेट नहीं किया. तो कहते हैं हम इन झंझट में ही नहीं पड़ते, ये आथर का काम है वेबसाइट को चेक करना. So we can take the journal through HGRA site directly, open journal through HGRA site. So we journal तो आप HGRA का तो HGRA में तो लिंक होता ही नहीं है. HGRA में तो सिर्फ नाम होता है. नाम उठा के आप गूगल पे देखें और फिर आप जर्नल पे होम पेज पे जा सकते हैं, या स्कूपस की वेबसाइट पे जाकर आप जर्नल ओपन कर सकते हैं. HGRS में किसी भी जर्नल का लिंक नहीं होता. एजर मस्जिद ओरिजिनल लिंक फॉर वेबसाइट, ये मैंने आपको आंसर दे दिया. ये बहुत कॉमन सजेशन है, लेकिन ये HGC के लिए जितना मैं समझता हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि HSC HGRA एक बार अपडेट करता है, वो नहीं चाहता कि बार बार अपडेट या बार बार लोग कंप्लेन करें कि वो तो लिंक चेंज हो गया. 30,000 जर्नल दें, और 30,000 जर्नल के हर लिंक को ये रेगुलर ये चेक करना कि वो चेंज हुआ नहीं हुआ, तो ये फिलहाल प्रैक्टिकल नहीं है उनके लिए. इफ अ वेबसाइट मेंशन इम्पैक्ट फैक्टर ऑन द टॉप ऑफ द आर्टिकल, व्हाट अबाउट दिस? अब अगेन पहले तो ये चेक करना है कि वो इम्पैक्ट फैक्टर लेजिटिमेट है या नहीं है, और वो इम्पैक्ट फैक्टर सिर्फ वेब ऑफ साइंस का होता है, वेब ऑफ साइंस की जर्नल का. तो वो जर्नल चेक करें वेब ऑफ साइंस से इंडेक्स्ड है या नहीं है. वेब ऑफ साइंस की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से आपको उस जर्नल को सर्च करें. अगर जर्नल वो वेब ऑफ साइंस इंडेक्स हुआ तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है. और यूजुअली जो ओरिजिनल इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं वो वेब ऑफ साइंस साल में एक बार ये क्वार्टरली वो रिलीज़ करता है, और इसको वेब ऑफ साइंस की अपनी वेबसाइट में मौजूद होता है. और बाकी मैंने आपको एक स्लाइड में दिखाया था बोगस किस्म के इम्पैक्ट फैक्टर भी होते हैं. प्लीज शेयर स्लाइड इन व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, आई विल शेयर इट. एंड थैंक यू साजिद, ऑलवेज रिप्रेजेंट चाहिए ज़बरदस्त. थैंक यू, आई हैव बीन लर्निंग समथिंग फ्रॉम यू. थैंक यू बीइंग ऑलवेज रेलेवेंट एंड टारगेटेड. प्लीज शेयर जर्नल फाइंडर लिंक. अच्छा समटाइम्स प्रिंट समटाइम्स स्विफ्ट. हाँ, अब ये भी असल में ISIN नंबर होना चाहिए, प्रिंट हो ई हो, इट डजंट मैटर.
लेकिन अगर कोई स्वेप करता है, कुछ एक बार करता है फिर वो करता है, तो फिर ये भी उस एडिटर की नाअहली है ना कि वो क्यों चेंजेस कर रहा है. Please share these web links. Okay, I will share. Thank Dr. Excellent effort. Thank you so much.